So hello everyone and welcome back to our YouTube channel. So in previous lecture that I have uploaded regarding Maharashtra SET examination, we have discussed completely the exam pattern as well as the marking scheme of the paper. Today what we are going to start is the communication module. Like आपने देखा था कि last time around हम लोगों ने figure out किया था कि there are 10 modules और 10 units on which particularly हर एक यूनिट पे आपको 5 सवाल रहते हैं and all those 5 questions each carries of 2 mark. So totally there are 50 questions considering of 100 marks. So communication module is one of the module out of that 10 in which you will be getting 5 questions based on this communication topic. So last time around हमने इसका clearly पूरा syllabus भी cover out किया था. So you can go through the playlist of Maharashtra SET examination on my channel in which you will get that lecture. So let us start. So basically हम देखेंगे कि एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लाइक अभी एग्जाम बहुत कम दिनों में आपकी है तो वी विल ट्राई टू डू इट एज अ क्रैश कोर्स जहाँ पे हम सिंपल क्वेश्चंस और सिंपल रैदर व्हाट एवर द क्वेश्चंस आर हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन उन्हें डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे जो भी नोट्स रिक्वायर्ड है वो डिस्कस करेंगे. सो नाउ बेसिकली व्हाट इज कम्युनिकेशन. Communication is the act of sharing information, ideas, emotion, thoughts, or messages between people or groups through verbal means, that is spoken or written, or non-verbal cues such as gestures, facial expressions and body language. Like हम लोगों को पता है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो वी आर कम्युनिकेटिंग, बट ये कम्युनिकेशन किस टाइप का है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये जरूरी है समझना. सो फॉर दैट whatever communication we are doing, that communication can be broadly classified into two types, that is verbal communication and एक है आपके पास non verbal. Now verbal itself means there will be some words which will be mentioned. Now those words can be either spoken words or those words can either be what in the form of written words. Like suppose मैं एक लेटर लिख के आपके पास में देता हूँ तो that will be a verbal communication through a written network. अगर अभी जिस तरीके से मैं कोई एक पीपीटी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग सम वर्ड, सो दैट इज अगेन अ वर्बल कम्युनिकेशन बट इन द स्पोकन फॉर्म. Now, non-verbal is gestures, facial expression, and body language. Like you know that whenever we visit a particular person, so we shake hands with them. So that is a kind of gestures as we do, or we smile कि कोई आपसे बड़ा अगर आपको दिखता है तो with in terms of respect we smile in front of that person. So that is again a gesture one. And body language, you know that body language is completely based, like आप interview में जाते हो तो there is a certain criteria of body language as well. So in order to execute this communication, there are few elements of communication. Now, what are those elements that we will understand? First, in order to execute any communication, there should be two persons. Like आपको ये basic सी बात पता है कि एक sender होना चाहिए, एक आपके पास में क्या होना चाहिए, you should have a receiver. So you know that there should be a sender and there should be a receiver. ये अगर चैनल कंप्लीट नहीं होता है, लाइक सेंडर इज देयर और पता ही नहीं कि कम्युनिकेशन में मैसेज कौन रिसीव करने वाला है, तो आपका वो कंप्लीट एक चैनल कंप्लीट नहीं हुआ. सो देयर शुड बी अ सेंडर एंड देयर शुड बी अ रिसीवर. अब इन बिटवीन दिस टू थिंग्स देयर विल बी मेनी थिंग दैट माइट बी हैपनिंग. लाइक अगर सेंडर कौन होता है, द पर्सन हु इनिशिएट्स द मैसेज, दैट पर्सन इज व्हाट यू कॉल्ड एज सेंडर. नाउ व्हाट इज अ मैसेज? मैसेज इज पर्टिकुलरली कि आपके पास में जो इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी. So that will be a particular message, the information or idea or emotion that need to be communicated. Now वो communication को हम किस channel के through provide करने वाले हैं, that will be known as your medium or a channel. Like the method used to deliver a message, like what, suppose for example कोई speech deliver कर रहा है. Suppose for example there is a person who is delivering a speech. So whatever speech he is delivering a particular message. और वो मैसेज फिर स्पीच के द्वारा बाकी रिसीवर्स के पास में पहुंच रहा है. सो दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस नाउ, लाइक सेंडर टू मैसेज, मैसेज टू मीडियम, और मीडियम क्या कर रहा है, फिर आपके पास में रिसीव कर रहा है. सो दिस फोर एलिमेंट शुड बी देयर, देयर शुड बी दिस फोर एलिमेंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज अगेन अ थिंग कॉल्ड एज व्हाट, फीडबैक. कि व्हाट एवर मैसेज दैट अ सेंडर इज डिलीवरिंग और वो किस तरीके से हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो वेदर दैट मैसेज इज इम्पोर्टेंट और वेदर दैट मैसेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेदर द मैसेज इज रिलीवेंट और वेदर इट इज इररिलेवेंट, that will be understood once we know what is a feedback.
So in order for a communication to happen, or in order to communication to be effective communication, अब effective communication मतलब जो communication हमारे लिए important है, for that there should be these five elements: sender, message, medium, receiver, and there should be a particular thing called as feedback. And now this noise is there, that noise is also something which disturbs your message. So for this communication to happen, you have to remember a thing, that there should be four elements, or five elements rather. There should be a sender, there should be a message, there should be a medium, that is also called a channel, there should be a receiver, and there should be a feedback. So based on this, there are different types of communication. Okay, so what communication are there in different types? The first one is what you called as verbal communication. The first one is what you called as verbal communication. जब अभी हमने discuss किया था कि verbal communication means there should be a spoken or a written language. Now this language can be any. like ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, उर्दू हो, या मलयालम हो, कन्नड़ हो, कोई भी हो सकता है. तो verbal communication can happen in any language. Okay. Now non-verbal communications are what? Non-verbal communications are one in which you are having body language, facial expressions are there, you are having gesture and tone of voice. अभी आपको भी पता है कि कोई अगर बहुत जोर से बात कर रहा है in terms of communication, तो हमें लगता है कि ये हमारे साथ में argument कर रहा है. So that is not the case. You should follow a proper hierarchy. You should proper discipline in order to get the communication done. So apart from this, there is a thing called as what again? A visual communication. Now visual communication is what? कि चार्ट दे दिया आपके पास में ग्राफ से या फिर कोई सिंबल से. लाइक आप लोगों को पता होगा जब हम ड्राइविंग की टेस्ट वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आर देयर कि हॉर्न नहीं बजाना है कोई जगह पे, या साउंड बहुत कम करना पड़ेगा. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग कॉल्ड एज व्हाट? विजुअल कम्युनिकेशन. अगेन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? अभी ये बहुत ही फेमस है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. यू नो अबाउट दिस, लाइक ईमेल्स आर देयर, यू आर हैविंग अ सोशल मीडिया, यू आर हैविंग लाइक इंस्टाग्राम. अगर इंस्टाग्राम पे कोई पर्टिकुलर पेज है रिगार्डिंग एनीथिंग, लाइक सपोज अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के और जो भी प्रॉपर न्यूज है वो चैनल पे आपको अकाउंट पे मिलते हैं. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड आउट होता है. तो बेस्ड ऑन सर्टेन टाइप देर आर दिस फोर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. So let us get into detail. So this verbal communication is one which involves the use of words to share information through what? Speaking or writing. That we have already seen कि verbal communication में you have to either speak or you have to either write the words. And what are the examples? Now see here, talking on the phone is a verbal oral communication. Yes, जहाँ पे हम speak कर रहे हैं. Writing a letter or a email, that is again a written communication. Delivering a lecture, oral. Again, reading a newspaper is also a written kind of verbal communication. Now, if I talk about non-verbal communication involves what? Conveying messages without words, using body language, gestures, facial expression, eye contact, posture and tone of voice. तो जितने भी बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं, लाइक वर्ड्स है, किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी बात करते वक्त, किस तरीके का जेस्चर आप दे रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, लाइक अगर किसी को आप गुस्से से देख रहे हो तो that goes into a different kind of communication. If you are confident enough to make eye contacts with people, that makes you look different. Again, tone of voice, आप कम ज़्यादा depending on the situation you have to adjust. So what are the examples of this non-verbal communication? Again, smiling to show friendliness. अब अगर आपके दोस्त वगैरह आपको दिखे तो you show the smile to them. Nodding to indicate agreement. अब आपको पता है कि अगर आपको कुछ wordings में नहीं बोल रहा है, तो आप अपनी मुंडी वगैरह हिला के हाँ या ना में जवाब देते हो. Throwing to express disapproval, एकदम गुस्से से हाथ मार दिया तो that is again disapproval, sorry. Hand gesture during a presentation and so on, कि while we are presenting, how do you react to them? So these are kind of verbal and non-verbal communication that you should execute. Again, now this one thing which is very important with the respect to your exam point of view is the flow of communication. Like अभी समझूंगा what is this flow of communication? The word itself is saying कि communication जो हो रहा है that is happening with a proper hierarchy. हायरार्की बोलो या एक प्रॉपर फ्लो में हो रहा है. लाइक सपोज फॉर एग्जांपल कि higher altitude say water is falling down, so there is a proper flow of that water from higher to lower thing. So based on this, see this, what is the flow of communication? This refers to the direction in which the information travels within an organization or a group. जैसे एक बात बहुत जगह फैल जाती है, so that is a kind of flow which is happening. अब वो किस तरीके से फैल रही है, that we have to see. Now see,
what will be this vertical communication? Vertical दो तरीके से हो सकता है. Either it can be, the vertical communication can be of two types here. It can be either upward vertical communication or it can be your downward vertical communication. Now see, communication that flows upward or downward between different levels of hierarchy in an organization. See, for example, simplest example मैं आपको देखता हूँ कि आपके कॉलेज वगैरह में if you are having, suppose say, in college you are having a principal, then in the same college you are having a vice principal, then you are having a, suppose say, there is a faculty in charge, like science faculty ho, commerce ho, art ho, and so on. Then you are having head of department, जो आपके एक HOD होते हैं. In also with respect to, there will be HOD. After that there will be a, suppose say, associate professor. I'm taking just an example. There is an associate professor, and then you suppose say you are having some lab attendant. Now see what hierarchy we are following here. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. अपवर्ड अगर मैं कम्युनिकेशन बोलूं जो वर्टिकल कैटेगरी में आता है, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन विल बी व्हाट, कि वी आर गोइंग अपवर्ड. लाइक ये लैब अटेंडेंट कुछ बात अपने एसोसिएट प्रोफेसर को बताएगा. दिस एसोसिएट प्रोफेसर विल टेल इट टू इट्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट. दिस हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल टेल इट टू फैकल्टी इंचार्ज बताएंगे वाइस प्रिंसिपल को, एंड दिस वाइस प्रिंसिपल विल देन कन्वे इट टू द प्रिंसिपल. सो एक प्रॉपर पैटर्न से हम चीजों को जा रहे हैं. एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अगर मैं बोलूँ तो प्रिंसिपल कोई लेटर इशू करेगा, दैट प्रिंसिपल इशूड अ लेटर टू वाइस प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल विल टेल इट टू फैकल्टी इंचार्ज आपके एचओडी को, एचओडी टू असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, एंड देन दे विल टेल इट टू देयर लैब अटेंडेंट. तो एक प्रॉपर हायरार्की हमने फॉलो आउट की है. सो हियर यू कैन सी लाइक डाउनवर्ड अगर मैं कोई ऑफिस के बारे में बात करूँ तो मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉइज, सो मैनेजर विल गिव इस इंस्ट्रक्शन टू व्हाट, एम्प्लॉइज. और अपवर्ड में क्या है, तो एम्प्लॉय मैनेजर को कुछ रिपोर्ट वगैरह प्रेजेंट करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्टिकल कैटेगरी, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो इस पे हर बार सवाल मोस्टली आया है, एंड वी विल सी इन द पीवाईक्यूज. नाउ व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. तो यहाँ से ही हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोजिशन और कम्युनिकेशन. सॉरी, लाइक सपोज ए प्रिंसिपल सपोज ए कॉलेज का होगा, there will be another principal one, suppose say any B college, there will be a principal again from any C college. So एक proper level के लोग, like all the principals from different colleges, ये सब एक से जगह जमा होकर they will do a communication, and that communication is what you called as horizontal communication. तो same level के लोग, like vice principals from different colleges, हो सकता है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो सब लोग एक जगह जमा होकर कुछ बातों पे कम्युनिकेट कर रहे हैं. दैट कम्युनिकेशन इज व्हाट यू कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. सो डिस्कशन बिटवीन टू टीचर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स टीम्स, एंड डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हो. तो बेसिकली यही बात बताना था कि वर्टिकल कम्युनिकेशन दो टाइप के होंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जहाँ पे हायरार्की फॉलोज होंगी. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में, सॉरी, एक सरी के लोग एक जगह बैठ के कम्युनिकेट करेंगे. नाउ दैट माइट बी प्रिंसिपल, दैट माइट बी वाइस प्रिंसिपल, दैट माइट बी फैकल्टी इंचार्जेस फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टीज, दैट माइट बी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट हेड्स डिपार्टमेंट्स, एंड सो ऑन. Now next is what you called as cross sectional communication. अब cross sectional आपको समझ में आना चाहिए. diagonal communication है. cross sectional बोले तो अलग अलग सेक्शन के लोग कम्युनिकेट करेंगे. like communication that occurs between different departments or levels, often across function or sections, like finance officer discussing a software issue with an IT assistant, or training manager interacting with line of supervisor. तो आप समझ सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल अगर हमने बोला तो एक पर्टिकुलर लेवल का नहीं, एक पर्टिकुलर हायरार्की का नहीं, कोई भी लोग किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, आपके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज फॉर्मल एंड अगेन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? सी, official and structured communication that follows the organizational hierarchy is what you called as formal communication. जो हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रॉपर हायरार्की फॉलो करके, प्रॉपर हायरार्की के थ्रू we will do a communication, and such a communication is what you called as formal communication. एक प्रॉपर हायरार्की, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल, सपोज इनको एक वर्क या एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है. सो व्हाट विल अ प्रिंसिपल डू? अ प्रिंसिपल विल इशू अ लेटर
that letter will be properly given to a suppose पूरे head of departments को principal को एक meeting के लिए बुलाना है, तो what will principal do? Principal suppose 5 head of departments है, so पूरे 5 head of departments को he will convey a letter, and that conveyed letter will be in proper formal way. अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसके अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पे स्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल रहा है। लाइक सपोज से फॉर एग्जांपल कोई भी सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल पे कोई भी स्टूडेंट उठ के जाके प्रिंसिपल को कोई भी लेटर फॉरवर्ड आउट कर रहा है। सपोज इफ यू वांट टू टेक सपोज अ स्टूडेंट फ्रॉम सपोज से बॉटनी डिपार्टमेंट, इफ यू वांट टू टेक अ प्रोग्राम, व्हाट ही हैव्स टू डू, उनको उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पहले एक लेटर देना पड़ेगा, then head of department will talk to its faculty in charge and then faculty in charge will convey it to the principal. But informal communication में क्या होगा कि direct student principal को letter दे देंगे that we want to take a particular program, and such a communication is what you called as informal communication. Then naturally हो जाता है कि individual खड़े वगैरह हैं, they are talking, so chatting with a colleague during a lunch, that is informal. Again quick phone call to share personal news, sharing jokes or personal experience, ये जो randomly हम चीजें करते थे, that is a kind of what informal communication. नाउ ग्रुप कम्युनिकेशन, तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होगा, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ ग्रुप वर्किंग टुवर्ड अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल डिफाइन किया है कि अलग अलग ग्रुप से स्टूडेंट आए, लाइक सपोज एक स्टूडेंट साइंस से आए, एक आर्ट्स से आए, कॉमर्स से आए, और वो तीनों एक जगह बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कॉलेज को किस तरीके से ग्रो करना है। सो सच अ कम्युनिकेशन इज व्हाट यू टर्म्ड एज व्हाट ग्रुप कम्युनिकेशन। Then what is classroom communication? Communication that happens in an educational setting, usually between teacher and students. So classroom communication is definitely there. अब ये classroom communication को आप group communication भी बोल सकते हो, लेकिन group communication में particular level of students ही बैठेंगे। What is happening in group sorry classroom communication? Classroom communication में एक teacher होगा, teacher with respect to student will the communication will take place. So यहाँ पे often confusion होता है कि classroom communication can be termed as a group communication, but there will be two levels of things, like एक teacher होगा जिनके particular level होंगी, there will be a group of student that will be in the particular level. So just don't get confused between this group communication and this classroom communication. तो classroom communication is what, suppose example अगर लेते तो teacher explaining a concept to students, student asking questions in class, and group discussion during lessons. तो ग्रुप डिस्कशन वहां पे फिर पर्टिकुलरली स्टूडेंट और टीचर के बीच में होगा। सिर्फ ग्रुप डिस्कशन बोला तो प्रॉपर एक पर्टिकुलर लेवल के लोग ही ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे। नाउ दिस इज अगेन अ ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन। तो इसको ग्रेप पॉइंट मतलब रूमर्स होते हैं कि किसी के बारे में कोई भी बात फैला दी है, तो उसको कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक ए पर्सन बी पर्सन को बोलता है, बी पर्सन सी को बोलता है, सी पर्सन डी को बोलता है, एंड सो ऑन। सो पर्टिकुलर एक रूमर्स तुम्हारे बारे में कुछ भी फ्लो आउट होता है, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन। ये बड़ा फेमस है, तो जस्ट वर्ड थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, लेकिन ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन इज सिंपली किसी के बारे में रूमर्स को फैला देना, अफवाह फैला देना without any proofs. Now, in order to explain this, there are certain models of communications. Okay, और इसमें से हर बार एक सवाल आता है, so just understand what are models of communication. तो first model is what you called as linear model. अब linear model अगर मैं बोलूँ, this model views communication as only what one way process. वन वे प्रोसेस मतलब अगर जैसे अभी मैं वन वे प्रोसेस बोलूँ कि आपको मैं कमेंट्स वगैरह ऑफ कर दूँ, तो सिर्फ लेक्चर को डिलीवर कर दिया मैंने और मुझे नहीं पता कि लेक्चर किस तरीके से हो रहा है, दैट इज अ लीनियर मॉडल। सिर्फ अकेला ही मैं मॉडल डिलीवर कर रहा हूँ, देयर इज नो फीडबैक, नथिंग इज देयर। So such models are what you called as one way, and there are two types of such models. One is what you called as Aristotle's model. Second one is what you called as Shannon and Weaver model. We will discuss these. What are these models? So there, remember there are three types of model. What are three linear models of communication? Second one is what you call as interactive model of communication. अब जैसे मैं वर्ड इंटरैक्टिव बोलता हूँ, तो इंटरैक्टिव में मतलब दो चीज तो होंगी कि इंटरैक्शन होने वाला है। तो दिस मॉडल इज कंसिडर्ड फीडबैक एंड ट्रीट कम्युनिकेशन एज व्हाट टू वे प्रोसेस। फीडबैक मतलब अभी जैसे मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओगे कि किस तरीके से लेक्चर्स हो रहे हैं, वेदर इट इज इंफॉर्मेटिव, वेदर इट इज नॉन इंफॉर्मेटिव, एंड सो ऑन। सो फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। So such models are what you called as interactive models of communication, जिसमें विल्बर श्राम्स मॉडल है, बर्लोज SMCR मॉडल है। Now we'll see what is this SMCR model also. Then translational model of communication. This model views communication as what? Simultaneous. Simultaneous मतलब at a time, continuous मतलब continuous process, और dynamic मतलब changing process. Where both sender and receiver are what? Active. At a time दोनों चीजें एक्टिव होंगी, सेंडर भी एक्टिव रहेगा और आपके पास में क्या रहेगा, you will receiver will also be active. So Berland's
transactional model is there and dance helix model is there. So we will discuss this in detail now. Like Aristotle's के model को अगर समझना है तो definition is what? One of the earliest communication model focusing on Parisian in public speaking, sorry. So this is one way model. Now see what are the elements? Elements आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि एरिस्टोटल मॉडल्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं. सो बेसिकली आपको पता है कि अगर मैं मॉडल्स के एलिमेंट के बारे में बात करूँ तो सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर शुड बी देयर, फीडबैक ऑल्सो शुड बी देयर. नाउ एरिस्टोटल के मॉडल में कौन से एलिमेंट थे? एक था स्पीकर, एक है स्पीच, audience and its effect. So this is commonly asked question ki element, what are the elements of Aristotle's model? So what should be there? Speaker, speech, audience and effect should be there. Like example, a politician delivering a speech. आपको पता है कि एक politician continuously speech deliver करते रहता है तो उसका effect क्या पड़ता है and so on. So that is the Aristotle's model. Then Shannon-Weaver model क्या बोलता है कि it is also known as mathematical model developed for telecommunication. Now see, this is very important. Telecommunication हम कर रहे हैं. Now let us understand each and every word here. एक तो सेंडर रहेगा, आपको ये पता है. सेंडर, मैसेज, रिसीवर और चैनल तो होता ही है. नाउ सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, सेंडर इज देयर. फिर आपके पास में आता है इनकोडर. अब इनकोडर मतलब क्या कि जो भी मैसेज है उस मैसेज को प्रॉपरली इनकोड करके हम रख रहे हैं. दैट इनकोडेड मैसेज विल बी ट्रैवलिंग थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल. तो हो सकता है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आए तो नॉइस विल बी देयर एंड डिकोडर शुड बी देयर. मतलब कोई मैसेज को इनकोड कर रहा है तो कोई उस मैसेज को बाद में क्या करते आना चाहिए, डिकोड करते आना चाहिए. एंड देयर शुड बी अ रिसीवर. सो शैनॉन एंड वीवर मॉडल में आपके पास में क्या है, सेंडर, देयर विल बी अ इनकोडर, देयर विल बी अ चैनल, देयर विल बी अ नॉइज, देयर विल बी अ डिकोडर, देयर शुड बी अ रिसीवर. तो शैनॉन और मॉडल्स, वीवर मॉडल में these are the elements. Now, what is happening? Wilbur and Schramm's model introduce the idea of what? Field experience. Now, whenever you see a field experience, there should be a word of feedback. So, what are the elements in this model? Encoder, decoder will be there, message will be there, and there should be a particular feedback about that program. Like a conversation where both people understand each other because of what? Shared background. Now see this Berlow's SMCR model, where the word itself SMCR का मतलब होता है send, source, message, channel and receiver. What does it do? It focuses on individual components of communication. Source होगा, message होगा, channel will be there and there will be a receiver. So this is what you about the Berlow's SMCR model. Like teacher is a source which is explaining a concept using voice as a channel to student as what? Your receiver. Now Berland's translational model आपको क्या बोलता है कि it emphasizes both the parties send and receive message simultaneously. Continuous simultaneous लूंगा. Like sender, receiver, message, feedback, this will be the elements. तो इस पे से सवाल तो अभी तक आया नहीं है. सवाल आपके पास में इसके पहले के मॉडल्स के ऊपर आए हैं कि what are the elements of these models and so on. So just focus on those things now. नेक्स्ट वन दिस डांस हेलिक्स मॉडल. ऐसे जैसे ही हेलिक बोलते हो तो हेलिक्स मतलब होता है तुम्हारा हेलिकल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर पूरा ऐसे इस तरीके का होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर होगा. लाइक कम्युनिकेशन इज लाइक अ स्पाइरल, इट डेवलप्स एंड एक्सपांड्स ओवर टाइम. तो बातें कभी खत्म नहीं होती. यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन, यू विल गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन. सो अ रिलेशनशिप इवॉल्विंग थ्रू डीपर कन्वर्सेशन ओवर ईयर्स. तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग होशियार हो तो ये चीज आपको वैसे भी समझ जाएंगी. नाउ फ्रॉम दिस, सो इसको अगर मैं कैटेगराइज करूँ या समराइज करूँ तो इस तरीके का आपको पता चलेगा कि लीनियर मॉडल एरिस्टोटल मॉडल है, शैनन वीवर मॉडल है, वन वे है, पॉलिटिकल स्पीच, फोन कॉल एंड एग्जांपल. यू कैन गो थ्रू दिस टेबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो कुछ एडिशनल टर्म्स भी है जो हमको समझनी पड़ेंगी. आउट ऑफ विच वी आर हैविंग और वी आर सीइंग इज अ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. अब इंट्रा पर्सनल मतलब क्या होता है कि इंट्रा मतलब होता है खुद के साथ. सो टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद के साथ सेल्फ टॉक. हम एक कोई ना कोई कंडीशन पे जाने के बाद में खुद के साथ ही खुद की बातें करना शुरू करते हैं तो दैट कम्युनिकेशन इज व्हाट यू कॉल्ड एज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे सिर्फ एक लोग की जरूरत होगी. सेकेंडली देर इज अ थिंग कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटर मतलब दो चीजों के बीच, एक से ज्यादा चीजों के बीच, दो भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, एक से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. कि दो लोग, दो दोस्त बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज इंटरपर्सनल. ना मास कम्युनिकेशन जैसे मैं बोलूँ तो मास मतलब बहुत ज्यादा लोग, वन टू मेनी. लाइक मीडिया है अभी जो मैं कर रहा हूँ तो दैट माइट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, कि मैं एक ही बात बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मुझे कम्युनिकेशन को समझना है कि किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट.
सो फीडबैक मतलब क्या होता है कि रिसीवर, अभी बहुत सारे कॉलेजेस में कोई भी प्रोग्राम होता है तो आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो, तो उस फीडबैक फॉर्म से समझ में आता है कि वट एवर द प्रोग्राम दैट हैज बीन टेकन, वेदर इट इज important और वेदर इट इज नॉट important. So feedback is again very important. So this is what you called as receiver's response. Secondly, noise मतलब interference in the communication. Okay. Now emoticons मतलब क्या होता है कि symbols किस तरीके के यूज कर रहे हैं, तो emotions को define करने के लिए smiley डाल दिया या कुछ कर दिया, तो that is symbol showing emotions. Iconic signs are there, like अभी मैं बात किया था आपके साथ में कि नो एंट्री का साइन है, कि हॉर्न होके प्लीज, जो बहुत देखा होगा आपने कि साउंड कम होना चाहिए, एंड सो ऑन. सो दैट वाज व्हाट यू कॉल्ड एज आइकॉनिक साइन. एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज फैटिक कम्युनिकेशन, की फॉर सोशल इंटरेक्शन में बहुत जोर से हाई वगैरह बोल दिया तो दैट विल बी अ फैटिक कम्युनिकेशन. सो दीज आर सर्टन एडिशनल टर्म जो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, और ये कोई इतना टफ नहीं है ध्यान में रखने के लिए. दीज आर जस्ट कॉमन टर्म्स टू अंडरस्टैंड. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कम्युनिकेशन तो कर लिया, बट वो कम्युनिकेशन आपके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं है. इफेक्टिव मतलब जो पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट. जैसे मैं अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता वेदर दिस कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव और नॉट अनटिल और अनलेस मुझे इस चीज का फीडबैक मिलता है. तो ध्यान में रखना कि एलिमेंट्स मॉडल में कुछ भी हो, लाइक सेंडर हो, मैसेज हो, रिसीवर हो, चैनल हो, जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलता है ना, तो कम्युनिकेशन कभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं है ये पता नहीं चलता. सो इन ऑर्डर टू गेट दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मुझे फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. इस पे से बहुत सारे सवाल आए कि फॉर एन कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. ध्यान में रखना कि पूरी की पूरी साइकिल अगर कंप्लीट हो जाए, पूरा का पूरा चैनल भी कंप्लीट हो जाए, पर जब तक मुझे फीडबैक उस चीज का नहीं मिलेगा ना, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वेदर दैट कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव और नॉट. सो रिमेंबर, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक क्लैरिटी होनी चाहिए मैसेज में. तो मैं कुछ भी बातें कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि किस चीज से रिलेटेड बातें हो रही है, तो उस कम्युनिकेशन में कोई सेंस नहीं बनता. सो वट एवर वी आर टॉकिंग, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर क्लैरिटी. कंसाइजनेस भी होना चाहिए. जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको कम्युनिकेशन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा, मैं इसको 4 10 15 लेक्चर तक भी बता सकता था, लेकिन कंसाइजनेस होनी चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं तो इट शुड बी कंसाइज. So whatever message we are delivering, that message should be concise, should be brief and to the point. ये कुछ भी फेंकना चीजें नहीं हो सकती. करेक्टनेस होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन में. मैं आपको हाउ आर यू पूछना है, तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि हाउ 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 गुड यू आर डूइंग एंड सो ऑन, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर वे. कंप्लीटनेस शुड बी देयर, कंसिडरेशन शुड बी देयर, कि अगर मुझे पता है कि आगे का जो पर्सन है वो थोड़ा गुस्सा जल्दी करता है, तो मैं उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा. मैं कंसीडर करूंगा कि उसका पर्सपेक्टिव उस चीज को लेके क्या है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज को लेके क्या है. कुछ भी बातें उसके साथ में करूँ तो देयर शुड नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरेशन नहीं होगा. कर्टसी क्या होता है? पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन. मैं, हो सकता है कि मेरे से बहुत बड़े कोई व्यक्ति है और उनके साथ में जाके मैं एज अ फ्रेंड बातें कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर डाउनफॉल में जाना शुरू करता है. एंड टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ फीडबैक. उस चीज का फीडबैक हमारे पास में होना ही चाहिए. सो दीज आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन. So this was all which I want. So these are again some important point that need to be discussed, like non-verbal communication predates for verbal communication. ये हम PYQ के जब देखेंगे तब देखेंगे. Now see here, like intrapersonal communication हो, interpersonal हो, group या mass communication हो, इन पूरे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को अगर मुझे सेपरेट करना है ना, तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पता होने चाहिए. लाइक मुझे पता है इंट्रापर्सनल होगा तो एक पर्सन है, इंटरपर्सनल होगा तो हो सकता है दो है, ग्रुप कम्युनिकेशन है तो हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, और मास कम्युनिकेशन में एकदम ज्यादा नंबर ऑफ लोग हैं. लाइक जैसे मास मीडिया हो गया मेरे पास में, कि कोई एक न्यूज़ चैनल है जो न्यूज़ डिलीवर कर रहा है, तो उनको नहीं पता आगे कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे. सो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दिस, यू शुड नो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट. ऑलवेज रिमेंबर दिस बोल्ड, इटैलिक, इमोटिकॉन्स आर नॉन वर्बल डिजिटल क्यूज. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक इंपॉर्टेंट है. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि मैं वट एवर लेक्चर आई एम डिलीवरिंग, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट टू यू और नॉट, यूजफुल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जब तक मुझे आप फीडबैक नहीं दोगे तब तक ये सब चीजें मुझे पता नहीं चलेंगी. नाउ कम्युनिकेशन अगर कोई कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन विल बी व्हाट अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस. मतलब इन विदाउट एनी सेंस कुछ भी बातें तो करने से रहे हम लोग, तो कम्युनिकेशन शुड बी व्हाट मीनिंग मेकिंग.
बैरियर्स लाइक नॉइज एंड इनअटेंटिवनेस रिड्यूस इफेक्टिवनेस। लाइक इसका सिंपल एग्जांपल है कि क्लास में अगर कोई लेक्चरर लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो बीच में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, सो वट एवर कम्युनिकेशन और वट एवर लेक्चर ही इज डिलीवरिंग, वहां पे क्या हो रही है, आपकी इनअटेंटिवनेस हो रही है। तो जिसके कारण वट एवर द कम्युनिकेशन वॉज देयर दैट विल नॉट बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसमें उसका ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। अब ये देखिए कि मास कम्युनिकेशन जो है तो इसमें डायरेक्ट फीडबैक आपको मिलने से रहा। ये सिंपल है कि लाइक फॉर एग्जांपल न्यूज़ डिलीवर हो रही है एक न्यूज़ चैनल पे, तो हम उनको ज़्यादा नहीं बोल सकते कि ये न्यूज़ आपकी ऑथेंटिक है कि नहीं है, आपका सोर्स ऑथेंटिक है नहीं है, वेदर दैट यू न्यूज़ इज important or not, and so on. Now this again one point is there that cultural differences affect communication. कल्चरल डिफरेंसेस मतलब क्या है कि एक कल्चरल में किसी एक चीज को इम्पोर्टेंट दे दिया, दूसरे कल्चर में दूसरी चीज को इम्पोर्टेंट दे दिया, एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट इन देयर ओन सेंस। लेकिन ये डिफरेंसेस के कारण भी कम्युनिकेशन में अफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ अपने मिसकम्युनिकेशंस होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, जिसके कारण भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है ये डिफाइन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू डेवेल, ये डेफिनेशन एक बार पूछी गई थी एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू डेवेल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। सिर्फ बातें करना ही कम्युनिकेशन नहीं होता, सिर्फ कुछ की कुछ न्यूज़ देना ही कम्युनिकेशन नहीं होता, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना भी है काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर। सो दिस वाज ऑल द थिंग दैट, मतलब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपके साथ में डिस्कस करने थे इन दिस मॉड्यूल ऑफ कम्युनिकेशन। इससे भी डिटेल चीजें डिस्कस हो सकती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मोर देन इनफ। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इफ यू नीड जस्ट कमेंट बॉक्स में बोल देना, तो विल शेयर द पीडीएफ। ऑल्सो in next lecture we will be discussing near about 30 PYQs of this chapter, जो प्रीवियस 6 to 7 एग्जाम्स में आपको आए हैं। सो दैट PYQs will give you again the definite idea about what type of questions will be there. So just do one thing, go through these lectures, इसके प्रीवियस लेक्चर भी आप go through करो, इसके ये वाला लेक्चर भी go through करो, and within 2 days or more, suppose for example परसों के दिन we will discuss the PYQ in one of the lecture. So these 2 lectures will more than enough for you to score either, आप पूरे 4 के 4 या 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं if you go through this. So thank you so much.